Hello, children. Today we have to start our third. We have to continue our exercise 10.3 of chapter vectors algebra. Okay, so in question number 11 we have to start. So let's start from question number 11. So here it is given that this is perpendicular to this vector. Okay, this is what C. अगर कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर आते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है. ठीक है, तो सी हमें ये वेक्टर गिवन है दिस इंटू बी वेक्टर्स प्लस बी वेक्टर एंड दिस होल वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद दिस वेक्टर ए बी माइनस बी ए. तो बेटा हमें प्रूव करना है कि इसका और इसका जो डॉट प्रोडक्ट है ये वेक्टर एक है, दिस जो सेकंड वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो आना चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर बोल रहा है ना. तो हमें ये शो करना पड़ेगा इसके अंदर कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो आएगा. ओके, सो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है अभी सिर्फ. ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको. सिंपली नॉर्मल जो मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम, इसको इसके साथ, फिर सेम इसको इसके साथ. ठीक है, सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट a within mod, that would be square because this is a within mod and this is also a within mod, and b, so this would be b dot b dot b. Similarly this into this, so minus sign will come, a vector, this a vector, this b vector, and then b dot a. Got it? B vector dot a vector. It's a magnitude of a vector into magnitude of b vector. Fine. Now this into this, so plus will come. This is the magnitude of b vector, magnitude of a vector, and a vector dot b vector. Okay, this is dot. Last minus this b into b, that would be b magnitude का स्क्वायर कर देंगे आप, a dot a, a dot a. Fine, that is equals to, so b dot b would also equals to b square within modulus sign. Okay, so as you can see a into this both are equal, so you can cancel these two vectors. Okay, minus this would be b modulus square and a modulus square. Okay, as you know that this and this both are equal and you are subtracting these two, so you will get zero. ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में बेटा आपका ऑर्डर कुछ भी हो, a डॉट बी, b डॉट a, ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ रहा है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ रहा है, माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऑर्डर ही आगे पीछे है, तो ये दोनों सेम होते हैं. तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेम में से सेम माइनस करोगे तो जीरो आएगा. ठीक है, so this is how you can solve your question number 11 of this exercise. Okay, so next, after this, your next question is question number 12. So in question number 12, a vector dot a vector, this is given which is equals to 0, and a vector b vector, that is also equals to 0. Then what can be concluded about the vector b? ठीक है, अगर हमारा a dot a 0 आ रहा है, a dot b is also equals to 0 आ रहा है. ठीक है, so we have to conclude that if you will solve this, you will get a modulus square equals to 0. So your a mod would be equals to 0. ये मिल रहा है हमें.
So that means was A vector is 0. A is a 0 vector. Okay. So that means what? अगर A vector आपका 0 आता है तो it will satisfy this equation both. Okay, so this is the conclusion. A vector would be 0 vector. Got it? And B can be any vector. ठीक है, B कुछ भी कोई भी वेक्टर हो सकता है, but A would be 0 vector. So this is the solution of question number 12. Okay, आ रहा है ना समझ? अभी आपने जब इस रिलेशन को सॉल्व करा, आपको A मॉडल 0 आ रहा है, दैट मीन्स आपका A वेक्टर 0 वेक्टर आ रहा है. तो जब आपका A वेक्टर 0 वेक्टर होगा तभी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं. तो इसका आंसर क्या आएगा? A इज अ 0 वेक्टर एंड B इज एनी वेक्टर. B आपका कोई भी वेक्टर हो सकता है. ठीक है, so note it down. Now your next question is question number 13. In question number 13, children, ABC are unit vectors. हमें ABC आपको unit vectors given है. A vector, B vector magnitude and magnitude of C vector that is equals to 1. अगर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आएगा और बेटा हमें गिवन है A प्लस B प्लस C दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड कह रहा है टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है इसमें? वी हैव टू फाइंड A डॉट B वेक्टर प्लस B डॉट C वेक्टर प्लस C डॉट A वेक्टर. Okay, so what I'm doing here, I'm writing A plus B plus C, इस वेक्टर का होल स्क्वायर, that would come A vector B vector plus C vector dot A vector B vector plus C vector. Okay, so now what we have to do, we have to multiply A dot A, that would be A vector within mod, that is equals to square A dot A plus A dot B plus A dot C plus now B with A, that would be B dot A, B dot B, that would be B vector magnitude square plus B dot C. Similarly C dot A, C dot B plus C vector magnitude square. Okay, this will come. Are you getting this point? Okay, after doing this, you are getting A square, B vector within magnitude C square, C vector magnitude square plus A dot B, and this is B dot A, so that both are equal, this and this both are equal, so it would be twice of A dot B. I am writing plus similarly this will be twice of B dot C will come. B dot C is here, B is B dot C and here it is B dot C. Okay, so I am writing at a place of these two, I am writing twice of B dot C plus twice of C dot A. Okay children, now as you know that A plus B plus C, this whole is 0, so 0 square I am writing at a place of this, and this is your unit vector, so 1 plus 1 plus 1 plus 2 I am taking common, it would be A dot B plus B dot C plus C dot A. Okay, so this would be 3 will come here, this would be minus 3, and with this 2 will come in denominator, so this is your answer, plus B dot C plus C dot A. So this is a simple algebra you have to use in this question. Okay, so this is the required answer. Okay, हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी ना, तो the value is -3/2. Okay,
So please note this. Your next question is question number 14. Okay. Till then, note down this. I'm doing question number 14 now. Now, next question is question number 14. Okay, बेटा हमें कंडीशन गिवन है, आपका ए जो वेक्टर है वो जीरो है, बी वेक्टर इज ऑल्सो जीरो, ए डॉट बी वेक्टर दैट इज जीरो. ये तीन कंडीशन हमें गिवन है. कह रहा है बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू. जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल. सी, here I'm taking one example. Your a vector, I'm assuming that is equal to 2i cap plus 4j cap plus 3k cap, and your b vector, I'm assuming that हमें ना इस कंडीशन को रॉन्ग प्रूव करना है. जस्ट 3i cap प्लस 3j cap माइनस 6k cap. अगर बेटा आप इसका a डॉट b निकालते हो, a डॉट b निकालो, i को i के साथ 3 to the 6, 4 into 3 that would be 12, minus 6 into 3 that would be minus 18. तो आपका जीरो आ रहा है. ठीक है, अब a का मैग्नीट्यूड निकालो. 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9. तो ये आपका आ जाएगा बेटा दिस 25 अंडर 29. तो आपका a जो वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड है वो नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है. सिमिलरली b का मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम. ठीक है, b का मैग्नीट्यूड आपका आएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर. तो 9 प्लस 9 ये हो जाएगा आपका 18, 18 प्लस 36 ये आपका आएगा 54. तो आपका जो b वेक्टर आ रहा है वो भी नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है. ठीक है, तो आपका a डॉट भी तो जीरो आ रहा है, बट आपके a और b जीरो नहीं आ रहे हैं. तो इसका कन्वर्स हमें प्रूव करना था. ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड. गॉट इट. बिकॉज हमें a जीरो दे रखा है, b जीरो दे रखा है. ठीक है, तब ये होगा, तब a डॉट बी जीरो आएगा. बट हमेशा ऐसा नहीं होगा. आपका a डॉट बी जीरो आ रहा है बट आपका a और b जीरो नहीं है. आपने इसका कन्वर्स प्रूव करा है यहाँ पर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 और 2 मार्कर में आ सकता है, 1 मार्कर में ही आएगा मोस्टली. ठीक है, सो नोट इट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. सी, इन क्वेश्चन नंबर 3 आपको 3 वर्टिसेस गिवन है बेटा. ए वर्टेक्स आपको गिवन है 1, 2, 3. आपको बी वर्टेक्स गिवन है ट्राइंगल का -1, 0, 0. आपको सी वर्टेक्स गिवन है ट्राइंगल का 0, 1, 2. क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एंगल ABC फाइंड करना है. अगर मैं मान लेता हूँ ये आपका ट्राइंगल है, ये A है, ये B है, ये C है. आपको एंगल ABC दैट मीन्स ये एंगल निकालना है. तो बेटा सबसे पहले इसके लिए आपके पास ये साइड होनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड BA. ये वेक्टर आपके पास होना चाहिए. BC ये वेक्टर आपके पास होना चाहिए. ठीक है, फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल देना. तो BA वेक्टर कैसे निकलेगा? A वेक्टर की वैल्यू माइनस दिस, तो 1 माइनस -1 दैट वुड बी 2 i कैप. ठीक है, BA कैसे निकलेगा? पहले A वेक्टर लेना पड़ेगा, दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर. तो 1 माइनस -1 दैट वुड बी 2 i कैप्स. दिस माइनस दिस प्लस 2j कैप. 3 माइनस 0 दैट वुड बी प्लस 3k कैप. ये आपको AB वेक्टर BA वेक्टर मिल गया है, ये वाला वेक्टर. अब BC वेक्टर कैसे निकालोगे? C वैल्यू 0 माइनस -1 ये आपको हो जाएगा i कैप प्लस 1. 1 माइनस 0 प्लस j कैप, 2 माइनस 0 प्लस 2k कैप. ये आपका आ गया BA और BC. निकाल दो उसका डॉट प्रोडक्ट. डॉट BC इज इक्वल्स टू BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड, BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा. ठीक है, यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड भी निकाल देता हूँ. BA का मैग्नीट्यूड क्या आएगा?
दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 + 9, तो बेटा ये आपका आएगा 13 17, रूट 17 आ गया। सिमिलरली BC का मैग्नीट्यूड निकाल दो आप, दिस वुड बी 1 + 1 + 4, तो आपका रूट 6 आ गया। ठीक है, डाल दो वैल्यूज। ए डॉट बी क्या, सॉरी दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर, दैट मीन्स 2 इंटू 1, 2 आएगा, 2 इंटू 1 अगेन +2, 3 इंटू 2 दैट इज +6, दैट इज इक्वल्स टू BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज रूट 17, BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज रूट 6 cos थीटा, दिस वुड बी 10 ओवर रूट 17 रूट 6 cos थीटा। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप, 10 ओवर, this would be 102, cos will come here, this would be cos inverse, this would be theta, so this would be the final answer। ठीक है, तो इस तरह से हम एंगल निकाल सकते हैं। क्लियर है? ऑर्डर का बेटा ध्यान रखना, आपको BA निकालना है, BA निकालना है तो आपको जो पहले बाद में जो वर्टेक्स आ रहा है ए के वेक्टर्स पहले लेना पड़ेगा, दैट इज 1 - -1 दैट इज 2i कैप, 2 माइनस दिस 0 2j कैप, ये ऑर्डर का ध्यान रखना। सिमिलरली BC में मैंने कैसे निकाला, C वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, दिस माइनस दिस 1, तो इट विल कम 1 i कैप। ठीक है, तो ऑर्डर का हमेशा ध्यान रखना है इसके वेक्टर्स के अंदर, अगर ऑर्डर का ध्यान रहेगा तभी क्वेश्चन ठीक होगा, अदरवाइज आता क्वेश्चन में मार्क्स चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 सी, बेटा इस क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट्स गिवन हैं और हमें प्रूव करने की पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ये पॉइंट हमारा है 1, 2, 7, बी पॉइंट बेटा हमारा है 2, 6, 3, सी पॉइंट हमारा है 3, 10, -1। तो ये 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, हमें इनको कोलिनियर प्रूव करना है। ठीक है, और पहले आप क्या करो, कोलिनियर प्रूव करने के लिए आप AB निकालो, AB वेक्टर निकालो, BC वेक्टर निकालो और डायरेक्ट AC वेक्टर निकालो। ठीक है, पहले वेक्टर निकालते हैं। एक्चुअल में हमें कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या प्रूव करनी है, ये कंडीशन है हमारी, AC वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड जो है BC वेक्टर के मैग्नीट्यूड प्लस AB वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा। ये कंडीशन एक्चुअली हमें फुलफिल करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहले हमें इन वेक्टर्स को निकालते हैं, AB वेक्टर हम निकालते हैं, दैट इज AB वेक्टर निकाला तो B माइनस A, B बाद में आ रहा है ना, तो 2 - 1 दैट इज 1 i कैप, 6 - 2 दैट इज +4j कैप, 3 - 7 दैट इज -4k कैप, ये आपका बेटा आ गया AB वेक्टर। सिमिलरली BC वेक्टर इज this minus this I cap only, this minus this plus 4j cap, this is your -1, -1 -3 -4k cap। ठीक है, BC आपका ये वेक्टर BC वेक्टर आ गया। अब आप निकालेंगे AC वेक्टर, 3 - 1 2i cap, 10 - 2 8j कैप, समझ आ रहा है ना, -1 -7 -8k कैप। आपके वेक्टर्स आ गए। अब इसका AB का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। AB का बच्चे मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का 16, तो ये आपका हो जाएगा 32 33। सिमिलरली मैंने BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, सेम आएगा, ये भी सेम ही आएगा, 1 + 16 + 16 दैट वुड बी √33। ऐसे ही मैंने AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, AC का मैग्नीट्यूड आएगा बच्चे √2 का स्क्वायर 4 8 का स्क्वायर 16 64 64, तो ये आपका आएगा दैट इज 12 132, सो इट कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ √33। ठीक है,
Let me check. So as you can see, the AC is equals to the sum of these two. Your AC is already coming here, so I'm taking the right hand side of this, that is BC plus AB. BC is root 33. This is also root 33, to do it twice of root 33. And your LHS, that is AC. AC आपका अकेला ही root 33 है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है. Hence they are collinear. Hence ABC are collinear. Question over. Okay, so this is how you can prove this. Now, next is your question number 17. Okay, let me erase this. So in this question, vectors are given to you. Okay, 3 vectors are given to you, and we have to prove that these are the vertices of right angle triangle. तो जो वेक्टर्स हमें गिवन है इनको मैं मान रहा हूँ पोजीशन वेक्टर. ये आपको पोजीशन वेक्टर्स गिवन हैं, दैट इज OA to I cap, J cap, K cap. OB ये आपका है I cap 3J cap minus 5K cap. OC 3I cap 4J cap 4K cap. ठीक है, तो जो हमें कोऑर्डिनेट्स, जो हमें तीनों जो वेक्टर्स गिवन थे ना, सारे हमें पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, और तीनों वर्टिसेस के किसी भी ट्रायंगल के. ये A है, ये B है, तो ऐसे हम एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं. ये हमारा O हो गया, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये OA हो गया, इसका OB हो गया, इसका OC हो गया. ठीक है, तो आपने पोजीशन वेक्टर्स ले लिए ये. अब आप क्या करेंगे, अब आप निकालेंगे AB निकालेंगे. अब AB जो वेक्टर निकलेगा वो निकलेगा दिस माइनस दिस. ठीक है, ऐसे ही आप निकालेंगे AB, आप निकालेंगे BC. ठीक है, AB BC एंड देन AC निकालेंगे. आप ये तीनों निकालिए. राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है ना, इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और पाइथागोरस थ्योरम वाला जो कॉन्सेप्ट था वो यूज करेंगे. सी कैसे यूज करेंगे, सी AB कैसे निकलेगा बच्चे, दिस माइनस दिस, 1 माइनस दिस, तो माइनस I कैप, दिस माइनस दिस माइनस 2J कैप, दिस माइनस दिस माइनस 6K कैप. ये आपका आ गया AB. ऐसे ही आपने BC निकालेंगे, दिस माइनस दिस, दैट वुड बी 2I कैप. ठीक है, BC मतलब C माइनस B ना, तो दिस माइनस 4 माइनस दिस, तो इट वुड बी माइनस J. दिस माइनस दिस, तो इट वुड बी प्लस K ओनली. ठीक है, अब आप AC निकालेंगे तो दिस माइनस दिस, दैट वुड बी I कैप ओनली, दिस माइनस दिस, दैट वुड बी प्लस माइनस 3J कैप, दिस minus 5K cap will come. Okay, now after getting these vectors, ठीक है, आपको क्या करना है, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है. AB निकालो, अंडर रूट -1 का स्क्वायर बड़ा 1 आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 आएगा, -6 का स्क्वायर प्लस 36 आएगा, तो इट वुड बी अंडर रूट 41. ऐसे ही BC का मैग्नीट्यूड निकालना है अपने, that would be 2 का स्क्वायर, that would be 4 प्लस 1, तो इट वुड बी अंडर रूट 6. ऐसे ही आप AC का मैग्नीट्यूड निकालिए, 1 प्लस 9 प्लस 25, सो इट वुड बी अंडर रूट 35. ओके, तो इनका जो मैग्नीट्यूड आपने निकाला है इसका स्क्वायर भी कर दीजिए. AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट वुड बी 41,
BC के magnitude का square, that would be 6. Similarly, AC के magnitude का square, that would be 35. So as you can see, AB के magnitude का square, BC के magnitude के square प्लस AC के magnitude के square के इक्वल आ रहा है ना ये. तो hence they are the sides of right angle triangle. स्टेटमेंट लिख देना. Hence it is a side of right angle triangle. क्वेश्चन खत्म. ठीक है. If A is in question number 18 क्या करना है बेटा आपने? If A is a non-zero vector of magnitude A and lambda is a non-zero scalar, then lambda A is a unit vector if, ठीक है, if, अब now you have to check the condition कि क्या हो सकता है. तो मैं हिंट दे रहा हूँ, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका. कैसे करेक्ट है आपने आंसर देना है. वीडियो देखो ध्यान से, देन यू हैव टू गिव द आंसर. दिस इज योर होमवर्क. ओके, तो बेटा आपकी जो एक्सरसाइज है 10.3 तक कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करेंगे. ठीक है. टिल देन बाय बाय, टेक केयर. अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो प्लीज़ यू कैन आस्क. ठीक है, पूछो उसे विदाउट हेजिटेशन, यू कैन आस्क. ओके, बाय बाय चिल्ड्रन, टेक केयर.